Hello guys, welcome back to my channel Learning Pathshala. If you're watching this video, that means you just have entered into the most important phase of your life. That is, you're going to give your board examination for the first time this year. But guys, this year's situation is somewhat different. You just have to work little harder than the other students. As lockdown is prevailing in our country, it is not possible for you to go for the live classrooms to get updated regarding your subject matter. You just have to rely more on the technology rather than live classroom to gather more knowledge, more information about your subject matter. But guys, before proceeding to the video, I would like to suggest you something. You have to balance your time from today onwards. You just need not to waste the time. As the time will pass, your board examinations will come and you will not even know about it. And secondly, stop giving from today. In fact, stop giving undue importance to one particular subject, because it will not help you out to gain marks overall. If you want to gain more marks, you just have to do one thing. You have to give equal weightage to all the subjects so that you can grasp more marks in all the subjects. All right, so let us proceed to the today's video, that is your first topic of biology of 10th standard, that is life processes. Guys, what do you think life processes are? These are just nothing. These are the basic processes जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में चलते हैं. अगर हमें लाइफ को मेंटेन कराना है तो इन प्रोसेसेस का होना बहुत ही मैंडेटरी है, कि होना ही पड़ेगा. इनमें से भी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं? पहला होता है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज द सिंपल प्रोसेस इन विच यू टेक फूड एंड इट इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी. नेक्स्ट आपका आता है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में बेसिकली जो फूड आपने कंज्यूम किया है उसे बर्न किया जाता है सेल्स के अंदर. किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से, ताकि एनर्जी को रिलीज आउट करा सके. फिर आपका थर्ड आएगा ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स कैरी किए जाते हैं एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक. अब इन सब प्रोसेसेस के दौरान हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं. They can't be accumulated in our body, because if they get accumulated, they will create toxicity in the body. So they just have to be removed from the body, and that process is known as excretion. It is a process by which waste products are removed from your body. Now next topic comes how to decide whether something was alive or not. The basic funda behind this to decide whether something is alive or not is the movement. If you see something is moving, that means it is living. But there are also some movements that are not visible with your naked eyes, such as the molecular movements that are taking place in your body. But they also decide that the organism is alive. And these molecular movements are very mandatory, very necessary in the cells or tissue to take place just for all the living organism. ऑलराइट, अगर हम फिगर्स में देखें, पहला हम बटरफ्लाई को देखेंगे. यू वेरी इजिली सी द बटरफ्लाई मूविंग फ्रॉम वन प्लांट टू द अनदर प्लांट. आप फिशेस को देखें, दे कीप ऑन स्विमिंग. दैट इज द मूवमेंट दैट इज क्लियरली विजिबल टू योर नेकेड आईज. नेक्स्ट आप बर्ड्स को फ्लाई करते देखते हैं. बट ये जो फोर्थ फिगर है, दैट इज द फिगर ऑफ डिफ्यूजन, जो कि हमें नहीं दिखता. ये हमारी बॉडी के अंदर सॉर्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट दैट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड आवर बॉडी. नेक्स्ट अ बॉय इज रनिंग, दैट इज a clear movement. एंड उसके बाद हम देखेंगे गैसेस एक्सचेंज हमारी बॉडी में होती हैं जो कि कंटिन्यूअसली चल रही हैं, बट वी आर नॉट एबल टू सी इट. नेक्स्ट है न्यूट्रिशन को अगर हम डिटेल में लें तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है दैट इज टेकिंग फूड एंड इट इज यूटिलाइजिंग फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड एनर्जी. मतलब बॉडी की ग्रोथ कराने में, टॉर्न आउट टिश्यू को रिपेयर कराने में और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराने में, ताकि अदर प्रोसेसेस इजीली हो सके. न्यूट्रिशन का प्रोसेस हमारी बॉडी में चलता है. हमारी जो लाइफ है अर्थ पर, वो बेसिकली डिपेंड करती है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स के ऊपर. क्यों? क्योंकि कार्बन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की
पॉसिबिलिटी रखता है, जिसकी वजह से कंबाइन करके मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तैयार कर सकता है। इनफैक्ट जितने भी हम फूड कंज्यूम करते हैं दे आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड ओनली। कुछ रॉ मटेरियल्स हमें बाहर से भी चाहिए होते हैं टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। दैट रॉ मटेरियल्स आर फूड, वाटर एंड एयर। अगर हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को देखें तो पहला मोड आपका आता है ऑटोट्रॉफिक, जिसमें प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तभी इन्हें कहा जाता है ऑटो, सेल्फ फीडिंग। ऑलराइट, सेकंड है आपका हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक is also further divided into saprotrophic, parasitic and holozoic nutrition that we will take one by one in detail afterwards. अगर हम स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन को देखें तो स्कीम को अगर हम देखें तो हम देखेंगे पहला है ऑटोट्रॉफी, दैट मीन्स सेल्फ फीडिंग ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज कर रहे हैं किसकी हेल्प से, फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सोर्सेस से। फिर दूसरा है हेटेरोट्रॉफी, जो कि होता है अदर सोर्स फीडिंग, दैट इज दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म टू गेट देयर न्यूट्रिशन। ऑलराइट, अब अगर हम ऑटोट्रॉफी को भी फर्दर डिवाइड करें, दैट इज डिवाइडेड इनटू फोटो ऑटोट्रॉफ एंड कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो वेरी क्लियरली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करा रहे हैं, कैसे, बाय यूजिंग द एनर्जी दैट इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द सन, दैट इज सोलर एनर्जी। अगर हम कीमो ऑटोट्रॉफ को देखें तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाते हैं बाय यूजिंग द एनर्जी दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल्स। अगर हम हेटेरोट्रॉफी की भी फर्दर डिवीजन देखें तो पहला आता है कंज्यूमर्स। ये डायरेक्टली ऑर्गेनिक मैटर को इंजेस्ट कर लेते हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो रिसेंटली किल्ड हो। इसमें भी कैटेगरीज को अगर हम देखें तो हर्बीवोर्स जैसे कि डियर वाली कैटेगरी को रख सकते हैं, कार्निवोर्स लायन, टाइगर, स्कैवेंजर्स में आप ईगल देख सकते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी आती है डेट्रीवोर्स, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर को इंजेस्ट करते हैं, रेदर देन लिविंग से वो नॉन लिविंग को इंजेस्ट करते हैं, जैसे अर्थवॉर्म हो गया, वुडलाइस हो गया। तीसरी कैटेगरी क्या है, सेप्रोट्रॉफ्स की, ये बेसिकली फीड तो नॉन लिविंग पे ही करते हैं, बट ये क्या करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट कर देते हैं, और जब वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है तो उसे एब्सॉर्ब कर लेते हैं। दैट इज द प्रोसेस दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द सेप्रोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल अगर बात करें बैक्टीरिया एंड फंजाई, जिन्हें हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। Now next is what are the basic types of heterotrophic nutrition. पहला देखिए saprophytic. These are the organisms that are dependent on non-living substance. मतलब जो भी dead और decaying organic material है या फिर matter है, उसे absorb किया जाता है इन organism के द्वारा, जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई। नेक्स्ट कैटेगरी है पैरासिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो होता है जो कि डिपेंडेंट होता है किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, यानी कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं होस्ट। इसकी बहुत क्लोज एसोसिएशन होती है होस्ट के साथ, और वो कंटिन्यूअसली होस्ट से फूड देता चलता है, और होस्ट को इस एसोसिएशन से कोई भी बेनिफिट नहीं होता, रेदर देन वो हार्म होता है, क्योंकि सारा बेनिफिट जाता है पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर, पैरासाइट के ऊपर, जैसे कि बैक्टीरियाज हो गए, कुछ फंजाई हो गए, प्लांट्स को भी हम इस कैटेगरी में रखते हैं, जैसे कि कसकटा, कुछ एनिमल्स हो गए जैसे कि टेपवर्म। अगर हम थर्ड कैटेगरी की बात करें, दैट इज होलोजोइक। होलोजोइक में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म या तो प्लांट और एनिमल के पार्ट पे फीड करता है या फिर होल ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम से इसको डाइजेस्ट किया जाता है, सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज किया जाता है, फिर जो हमारी बॉडी के सेल से उन्हें एब्सॉर्ब कराया जाता है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज प्लांट्स में न्यूट्रिशन बेसिकली डिटेल में देखें तो कैसे चलता है। प्राइमरीली एक प्रोसेस चल रहा है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना फूड खुद तैयार कर रहा है। क्या क्या रॉ मटेरियल्स को यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके, वाटर को यूज करके, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। अब इससे प्रोडक्ट जो सिंथेसाइज होता है उसे हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो कि बॉडी के अंदर प्लांट की स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और इसके साथ साथ इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन भी रिलीज आउट होती है। अगर हम इसको इक्वेशन को देखें तो 6 मॉलिक्यूल जब कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्स होते हैं वाटर के साथ, तब एक शुगर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड आउट होता है। अगर हम
राइट हैंड साइड की तरफ देखिए तो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और लेफ्ट हैंड की जाएंगे तो हम इसे रेस्पिरेशन कहेंगे. Alright, now next coming to the process of photosynthesis. Basically photosynthesis 3 main steps में चलता है. पहला लाइट को एब्जॉर्ब करना क्लोरोफिल के द्वारा, फिर कन्वर्ट कराना लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, और जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स है उन्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज कर देना. फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस्ड कराना विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन, और क्या बना देना, कार्बोहाइड्रेट बना देना. ऑलराइट, नाउ क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो कि लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनका बहुत बड़ा रोल होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करवाने में. अगर आप लीव का क्रॉस सेक्शन देखें माइक्रोस्कोप के अंदर तो आप देखेंगे कुछ सेल्स के पास ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. दीज आर जस्ट नथिंग, दीज आर द क्लोरोप्लास्ट. इनके अंदर ही क्लोरोफिल फिल्ड होती है. अगर आप डायग्राम्स में देखेंगे तो चीजें आपको और क्लियर होंगी एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट क्या है और क्लोरोफिल क्या है. Next is stomata. Stomata are just tiny pores, very small pores that are present in the leaves, जहां से mainly exchange हो रहा है gases का. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज चलता है प्लांट्स में वो स्टोमेटा की हेल्प से चलता है. अगर हम एक स्टोमा को देखें तो इसके पास एक पेयर ऑफ गार्ड सेल होता है जो कि किसको कंट्रोल कर रहा होता है, कैसे स्टोमेटा ओपन होगा, कैसे क्लोज होगा. बेसिकली स्टोमेटल पोर को कैसे ओपन और क्लोज करेंगे वो जाता है गार्ड सेल के ऊपर, इसकी ड्यूटी जाती है गार्ड सेल के ऊपर. जैसे ही वाटर एंटर करेगा गार्ड सेल के अंदर तो वो स्वेल अप हो जाएगा और पोर्स जो है स्टोमेटल पोर्स जो है वो ओपन हो जाएंगे. बट जैसे गार्ड सेल ने वाटर को लूज किया वो श्रिंक कर जाएगा और पोर्स जो है वो इस कंडीशन में आ जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे. ऑलराइट, थर्ड फिगर में देखिए आपको पता चलेगा कि स्टोमा कैसे ओपन हो रहा है और कैसे क्लोज हो रहा है. नाउ कुछ एक्टिविटीज हैं जिससे हम एसेंशियलिटी क्राइटेरिया को कंफर्म करेंगे. पहला है, हम कहते हैं क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ हाउ कैन वी प्रूव दैट? This is a simple activity that you can perform at your home also. Just take a potted plant with variegated leaves. For example, you can just take a money plant and keep it in dark for 3 days. मतलब आप उसे डार्क रूम में रखिए 3 दिन के लिए ताकि उसमें जितना भी स्टार्च है दैट इज यूज्ड अप. फिर उसे वहां से 3 डेज के बाद निकाल के सनलाइट में रखिए फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स. उसके बाद आप क्या करेंगे, एक लीफ को प्लग करेंगे और उसके ग्रीन एरियाज को मार्क कर देंगे और एक शीट ऑफ पेपर पे ट्रेस कर देंगे. फिर हम उस लीफ को डिप करेंगे बॉइलिंग वाटर के अंदर. व्हाई सो दैट इट कैन बिकम सॉफ्ट. अब बॉइलिंग वाटर से निकाल के हम इस लीफ को अल्कोहल में डिप करेंगे, फिर उसे हीट करेंगे वाटर बाथ के अंदर ताकि उसे हम प्रॉपर्ली डीकलराइज कर सके और जितना भी क्लोरोफिल है उसे रिमूव कर सके. लास्टली हम उसे वॉश करेंगे लीफ को वाटर के अंदर और फिर आयोडीन सॉल्यूशन में जब डालेंगे तो हम क्या देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट ही लीफ का टर्न हो रहा है ब्लू ब्लैक. इससे क्लियरली समझ में आता है कि क्लोरोफिल इज वेरी नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, ये हमें बताएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी जरूरत है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस. सपोज आप 2 पॉटेड प्लांट्स ले लीजिए, यानी कि 2 आप प्लांट्स आप फिगर में देखिए ऑलमोस्ट इक्वल साइज के हैं. इन दोनों प्लांट्स को हम डार्क रूम में रखेंगे फॉर एटलीस्ट 3 डेज सो दैट ऑल द स्टार्च इज यूज्ड अप. अब क्या करेंगे, हम प्लांट्स को सेपरेट ग्लास प्लेट्स पे रखेंगे और एक वॉच ग्लास लेंगे जिसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगी और एक प्लांट की साइड में रख देंगे. क्यों? क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जितनी भी CO2 होगी उसे एब्जॉर्ब कर लेगी. अब सेपरेट ग्लास जार से हम इन दो द प्लांट्स को कवर कर देंगे और बॉटम को सील कर देंगे ताकि वो एयर टाइट हो सके प्रॉपर्ली. अगर अब हम सनलाइट में इन प्लांट्स को रखते हैं 2 आवर्स के लिए और इनकी लीव्स को प्लग करते हैं और स्टार्च टेस्ट कराते हैं तो हम देखेंगे जो प्लांट की लीव जार में पड़ी थी उसके पास QH था, वो स्टार्च नहीं शो कर रहा. जिसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का वॉच ग्लास जिसके पास रखा था वो प्रेजेंस नहीं शो कर रहा स्टार्च का. क्यों? क्योंकि उसने सारी CO2 को यूज्ड अप कर लिया. इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि CO2 इज वेरी नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस
to take place. Now, quick glance what just we have studied today. We have just saw the definition of life processes. What are they? They are just the basic processes which is very necessary for maintaining the life in entire living organism. इनमें हमने किन किन प्रोसेसेस को स्टडी किया? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या डिसाइड करेगा कि वो अलाइव है कि नहीं है कुछ चीज? तो वो है मूवमेंट. इसमें भी हम न्यूट्रिशन के मोड्स में पढ़े थे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रॉफिक है. फिर हमने हेटेरोट्रॉफिक की कैटेगरीज को देखा था, होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक. फिर हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सनलाइट को ट्रैप किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, एंड दैट इज द मींस ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द होल बायोस्फीयर. फिर क्लोरोफिल जो है, दे आर जस्ट नथिंग, दे आर द ग्रीन पिगमेंट्स जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं और बहुत एसेंशियल होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस. स्टोमेटा क्या करा रहे थे? गैसियस एक्सचेंज करा रहे थे, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? प्लांट की लीव्स में. क्लोरोफिल और CO2 दोनों नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसमें हमने दो एक्टिविटीज स्टडी की थी जिससे क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि क्लोरोफिल और CO2 बहुत नेसेसरी है. So guys, please don't forget to like, share and subscribe. If there is any query, you can just drop me in the comment box and press the bell icon to get notified for the more chapters, or we can say more topics.